वरहमतुल्लाहि وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج کے ٹاپک میں ہم سمجھیں گے دعا کیا ہے. ویسے آج کا ٹاپک ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ دعا کی کیا امپورٹنس ہے، دعا ہے کیا، ہم مانگتے ہیں تو کیا چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کتنی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا تقاضا ہے اس کا، کب کرنا ہے، کس حیثیت سے کرنا ہے اور کس سے کی جانی چاہیے. اور بے شک جو ساری دعائیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قبول کرنے والے ہیں. اور کس طرح سے جو ہیں دعائیں جو ہیں کیا ہوتی ہیں، ایکسیپٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. ویسے یہ ایک الگ سے ٹاپک تھا جب الحمدللہ کلاسز سٹارٹ ہی ہوئی تھی. آپ چاہیں تو یہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں دعا کی قبولیت. اس میں بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں گی، لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو دعا مستقل کی جانے والی عبادت ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دعا مومن کا سب سے کیسا پاورفل ہتھیار ہے. کیسا ہتھیار ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں کسی سے بچنے کے لیے، کسی چیز سے لڑنے کے لیے، اور جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ پاورفل ہتھیار تب نکالتے ہیں نا. جیسے مان لیجیے ہم اگر کوئی چیس بھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ پاورفل داؤ تبھی چلتے ہیں جب ہمیں جیتنا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ پاورفل جو ہے کیا ہے؟ ویپن ہے، ہمارا ہتھیار ہے. کس کا؟ ایک مومن کا. اور دعا مستقل کی عبادت ہے. جیسے ہم لوگوں نے آج کل کیا بنا لیا ہے نا بہنوں، کہ دعا صرف پریشانی میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ دعا جو ہے اسپیرنگ ویل ہے. اسپیرنگ ویل کیا ہو گیا؟ جب گاڑی جو ہے اسٹیپنی ہوتی ہے نا گاڑی کی، جب گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں اور ایک 5واں پہیا ساتھ میں اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، یا لوگ پھر رکھتے ہیں الگ سے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب گاڑی کا پہیا جو ہے یا تو پنکچر ہو جائے یا کچھ خرابی آ جائے اس کے اندر، تو جب وہ ایک پہیا خراب ہو جائے، ایک ویل خراب ہو جائے، تو وہ 5واں پہیا جو ہمیں یوز کرنا ہے، ہم دعا کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. ٹھیک، کہ جب چلو ایک ایک چیز کچھ چیز خراب ہو گئی، کوئی مشکل آ گئی، تو تب دعا کر لی گئی اس طرح سے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو دعا ہے اسٹیئرنگ ویل ہے زندگی کا، یعنی کہ جس سے گاڑی چلائی جاتی ہے. اگر اسٹیئرنگ ویل ہی نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی کیسے؟ زندگی کیسے چلے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد جو پہلی عبادت تھی انہوں نے جب جو بتایا آدم علیہ السلام کو، وہ دعا تھی. بہنوں دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. اب دعا کیسے عبادت ہے؟ کیونکہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو عبادت ہوئی نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہی عبادت ہے بہنوں. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو یہ عبادت میں آتا ہے. کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اوپر سے بنایا، سر سے پاؤں کی طرف بنایا. تو جب سر بن گیا تو آدم علیہ السلام کو کیا آئی؟ چھینک آئی زور سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک کلمہ سکھایا. کیا کلمہ؟ الحمدللہ. اور فرشتوں نے جب ان کا الحمدللہ سنا تو انہوں نے فرمایا یا رحمک اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب سے تم اور تمہاری اولاد بھی یہی کہے گی، چھینکے گی تو، اور جواب میں یہی کہا جائے گا. لہٰذا پہلی عبادت آدم علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروائی وہ ایک دعا تھی. کیا تھی؟ دعا تھی بہنوں. اور توبہ جب قبول کی، جب توبہ قبول کی تو وہ بھی دعا کے ذریعے توبہ قبول کی. ٹھیک ہے، تو دعا کیا ہے؟ دعا مستقل عبادت ہے. دعا جب سوچیے آدم علیہ السلام بنے تب سے دعا ہے، اور کب تک؟ جب انہوں نے توبہ مانگی تب تک دعا ہے، اور آج تک جو ہے دعا چل رہی ہے. الحمدللہ.
और हमें क्या है ना, दुआ एक ऐसी इबादत है बहनों, देखो नमाज पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वजू करनी होती है, हमें पाकीज़गी चाहिए, हमें नमाज का वक्त चाहिए होता है ना? हमें क्या होता है, हमें हालत जो होती है हमें पाकी वाली चाहिए होती है, ठीक है? हर टाइम हम नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक? वो अलग बात है कि नफिल की बात हो रही है, ठीक? नवाफिल नमाज तो पढ़ी जा सकती है, लेकिन जैसे हम कहाँ कर पाते हैं ना नवाफिल, हम तो अपने फर्ज भी नहीं कर पाते। लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है बहनों, जो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, किसी भी जगह, किसी भी हालत में, यहाँ तक कि जो सिस्टर्स होती हैं मेंसेस की हालत में होती हैं, ठीक है, हैज की हालत में होती हैं, तो क्या होता है कि वो भी दुआ कर सकती हैं बहनों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक भी घड़ी ऐसी नहीं थी जब उन्होंने दुआ ना की हो। उसका एग्ज़ाम्पल, जब वो सो के उठे तो सो के उठने की दुआ, फिर जब सो के उठने के बाद जो होता है इंसान जाता है बैतुल खला में जाने की दुआ, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, ठीक है? फिर उसके बाद वज़ू करता है इंसान, उसके लिए अ, फज्र के लिए तो वज़ू करने से पहले की दुआ, फिर नमाज़ दुआ है पूरी, फिर उसके बाद नमाज के बाद दुआ, खाना खाया तो खाना खाने से पहले दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ। तो पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी घड़ी ऐसी नहीं कि उन्होंने दुआ ना की हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और वो तो बल्कि और ज़्यादा दुआ किया करते थे हम हमारे लिए। दुआ की गलतफ़हमी जो है हमने क्या किया है कि अपनी ज़रूरतों के वक़्त के हिसाब से बना लिया। हमने क्या हम ये क्या है, हमारी गलतफ़हमी है कि जब हमारा ज़रूरत का वक़्त आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि परेशानी के वक़्त दुआ करते हैं। लेकिन दुआ हमें क्या पता चला कि दुआ हर वक़्त की जाने वाली इबादत है। और लोगों का ये है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, मैं करती हूँ या मैं करता हूँ दुआ, पर पूरी नहीं होती है। समझ क्या समझ क्या थी कि मुश्किल में, क्योंकि हम किस तरीके से समझते हैं कि मुश्किल में दुआ की हमने और कबूल नहीं हुई, तो हमने क्या समझ के किया दुआ? मुश्किल वक़्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद किया ना, ठीक? और फिर क्या होता है, बदज़न हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गलत ज़हनियत रखते हैं हम लोग कि और अगर हम इबादत समझ के करें, इबादत यानी कि हमेशा की जाने वाली इबादत, तो हम मुस्तकिल जो है निजात पाने के लिए निजात पाने वाले बन जाएँगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ से हमें क्या पता चला कि ये स्टीयरिंग व्हील है लाइफ का, ये स्टेपनी नहीं है कि पंक्चर हो गया गाड़ी में तो फिर निकाल के दूसरा लगा लिया, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग को क्या लगता है कि और गलतफ़हमियाँ क्या हैं कि सिर्फ़ बुरे वक़्त में की जानी चाहिए, पहली गलतफ़हमी तो ये थी। फिर या तो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो दुआ कबूल नहीं की, तो हम लोग क्या करते हैं बहनों, हम लोग छोड़ देते हैं दुआ करना। या तो कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। कम करना, छोड़ना तो फिर भी है कि चलो इंसान ने ये सोचा कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी है इसके अंदर, फिर भी छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि कैसा अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं किया, है ना? ये सब कुछ, और ये खतरनाक चीज़ है, और इसके बाद लोग शिर्क और कुफ्र में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे कोई ना कोई आके कहेगा कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके जो है उनके दर पे जाके दुआएँ कबूल होती हैं बहनों। इसी तरीके से शैतान आपको लेकर जाता है, और वो आएगा, वो लेकर जाएगा कि अच्छा यहाँ कबूल नहीं हुई, लेकिन आप नहीं जान रहे अल्लाह ने क्यों कबूल नहीं की आपकी दुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह गाफ़िर, इसको सूरह अल मोमिनून भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर जो है 60 में, ये सूरह 40 है और आयत 60 है, यहाँ मैंने गलत टाइप हो गया है मुझसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम दुआएँ करो मुझसे, योर लॉर्ड हैज़ प्रोक्लेम्ड कॉल अपॉन मी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुझे पुकारो, ठीक है? और कहते हैं आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, और मैं तुम्हारी दुआएँ सुनूँगा। जो मुझे दुआएँ नहीं करते, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि श्योरली दोज़ हू आर टू प्राउड, जो मुझसे दुआएँ नहीं करते हैं, मुझसे नहीं माँगते हैं, अपने तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं माँगते हैं। किस लिए नहीं माँगते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा क्या? दोज़ हू आर टू प्राउड, अपने तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं माँगते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा वहाँ पर? अन इबादती, यानी कि दुआओं की शक्ल में मेरी इबादत नहीं करते हैं। यहाँ
सेकंड लाइन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया अन इबादती, यानी कि दुआओं की शक्ल में मेरी इबादत नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे शख्स को फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को मैं जहन्नम के अंदर दाखिल करूंगा, डाल दूंगा उठाकर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, तो अल्लाह ने क्या कहा कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। और जो लोग बोलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कबूल करते, क्या ही मिला आज तक, मैंने ये मांगा ये नहीं मिला, वो मांगा वो नहीं मिला, है ना, और फिर दुआएं मांगना छोड़ देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि मैं ऐसे लोगों को उठाकर जहन्नुम में डाल दूंगा, यदखुलूना जहन्नुम दाखिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए बहनों, कितना अगर हम ऐसे उस पर हैं तो हम दुआ करें। और अब तो हमें पता चल गया है कि एक इबादत ऐसी भी है कि जो हमेशा करने वाली है, और ये जिंदगी का स्टेयरिंग व्हील है, ना कि स्टेपनी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेयर व्हील जिसको बोलते हैं ना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ए महबूब जब तुमसे मेरे बंदे पूछे तो मैं नजदीक हूँ। ज्यादातर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा, सूरह बकरा में कोई भी सवाल अगर बंदों ने किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कुल, काला, या तो कह दो, या फिर कुल वर्ड का यूज हुआ कि ए नबी इनसे कह दो, ए नबी उनसे कह दो। ज्यादातर यही वर्ड यूज हुआ कि कह दो चांद के बारे में कि वो सिर्फ जो है समय मापने की चीज है, और कह दो लोगों से कि ये जो चीजें हैं ये तुम गलत करते हो, तो वहां कुल वर्ग का यूज हुआ बहनों। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ की बात की और कहा, और ए महबूब तुम मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नजदीक हूँ, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुल नहीं यूज किया बहनों, फ़इन्नी करीब कहा, फ़इन्नी करीब, कुल फ़इन्नी करीब नहीं कहा। तो इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने करीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने को जरूरत नहीं पड़ी कि नबी तुम कह दो कि ये मैं तो इतना करीब हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं करीब हूँ, इतना करीब हूँ कि मुझे ये जरूरत नहीं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दूं कि नहीं, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, खुद कहा सुभान अल्लाह। और ए महबूब जब तुमसे मेरे बंदे पूछे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ क्या यूज करते हैं, बाकी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुल, कह दो, काला यूज किया, कुल यूज किया, लेकिन यहाँ कहा तो मैं नजदीक हूँ, फ़इन्नी करीब, और दुआ कबूल करता हूँ। पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि कि तुम कह दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे, सोचिए मुझसे, आपसे, सारी बहनों से कहा, क्या कहा कि मैं जो है तुम्हारे करीब हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सोचिए यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं वो खुद सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो क्या ये लफ्ज जो है दिल को सुकून नहीं पहुंचाते? क्या ये लफ्ज जो है दिल को उम्मीद नहीं देते कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मेरे करीब है? जब इंसान अकेला होता है, कुछ नहीं होता उसके पास करने के लिए, अभी एक किस्सा आएगा, तो दुआ काम आती है बहनों, दुआ काम आती है। जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम अकेले थे, और क्या है, दुआ इबादत है। जामी तिर्मिदी की जो है रिवायत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे करते हैं दुआ कबूल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और जब ये साबित हो गया कि अल्लाह ही दुआ कबूल करते हैं, तो अल्लाह दुआ कैसे कबूल करते हैं, अब हम ये देखते हैं। अल्लाह ने खुद कहा कि मैं दुआ कबूल करता हूँ, और उसका तरीका क्या है कि मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से दुआ कबूल करते हैं, तरीका हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नहीं बता रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है कि देखो, अगर तुम दुआ मांगते हो, या तो मैं ऐसा कर देता हूँ या मैं ऐसा कर देता हूँ। तो ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई शख्स अल्लाह से दुआ करता है जिसमें गुनाह और खता रहमी ना की हो उसने, यानी कि उसने क्या किया हो, ना तो गुनाह मांगा हो कि या अल्लाह, जैसे आजकल मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को ही मांगे,
है ना? या फिर बोले कि बाहर जाऊँ उसके साथ घूमने, या तो उसने गुनाह ना माँगा हो, या फिर मैं ही हूँ और मैं बोलूँ कि मैं जो है किसी उसमें जाऊँ, क्लब में जाऊँ या कहीं जाऊँ, ठीक है? जहाँ पर हुक्का वग़ैरह चल रहा हो उस जगह जाऊँ, या सिगरेट नोशी, शराब नोशी, या फिर मैं अल्लाह से ये बोलूँ कि मेरा जाना आसान कर दे, जिसमें कोई गुनाह ना माँगा हो उसने, और क्या ना माँगा हो, खता रहमी ना माँगी हो। खता रहमी का मतलब क्या हुआ? रिश्ता तोड़ने की बात कि अल्लाह इनसे मेरा वास्ता ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहती इनके साथ रहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई शख्स अल्लाह से दुआ करता है जिसमें गुनाह और खता रहमी ना हो, ठीक? जब कोई शख्स अल्लाह से दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह ना उसने मांगा हो और खता रहमी ना मांगा हो, तो अल्लाह सुबहाना व तआला क्या करते हैं, उसकी दुआ तीन तरीके से जो है कबूल करते हैं। पहला तरीका, दुआ के मुताबिक ख्वाहिश पूरी कर देता है। अल्लाह सुबहाना तआला क्या करते हैं, दुआ के मुताबिक ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, यानी कि हू बहू दे देते हैं। आपने कार मांगी, आपको कार मिल गई। आपने घर मांगा, आपको घर मिल गया। आपने टॉप आने के लिए बोला कि अल्लाह मैं टॉप करूँ, तो आप टॉप हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर लगता है कि वो चीज़ वो यहाँ नहीं दे सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे सकते हैं, यानी कि वो चीज़ इस दुनिया में बेहतर नहीं है आपके लिए, है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के लिए उस उठाकर उसे ज़ख़ीरा बना देते हैं, यानी कि खज़ाना बना देते हैं आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं कि अगर यहाँ नहीं मिली, आपका सब्र आज़माने के लिए भी अल्लाह जो है आपकी दुआ रद्द कर सकते हैं। आपके लिए वो बेहतर, आपके प्रोटेक्शन के लिए भी रद्द कर सकते हैं, और अल्लाह अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी आपकी दुआ रद्द कर सकता है। ठीक है? तो क्या हुआ, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हूबहू दे देते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आखिरत के लिए उठाकर ज़ख़ीरा बना देते हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ के बराबर मुसीबत को टाल देता है। सुभान अल्लाह! क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा जो है, या अल्लाह हमारा हमारा अल्लाह जो है बहुत ज़्यादा उनको शर्म आती है। उनको कैसे शर्म आती है? जैसे इंसान शर्माता है वैसे नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे शर्माते हैं कि जब कोई बंदा जो है उनके सामने हाथ उठाता है, तो उनको शर्म आती है कि मैं ही तो हूँ देने वाला, और अगर मैं ही ना दूँ, सोचिए कोई इंसान मुझसे उम्मीद लगाए और वो मेरे पास आए कि आप ये कर दें, और मैं ना कर पाऊँ, सिर्फ़ उसने मुझसे तो हम कितना शर्मिंदा हो जाते हैं। उस टाइम पर मान लीजिए कि अगर हमारे पास पैसे ना रहे और कोई हमसे पैसा ही माँग ले, हम कितना शर्मिंदा हो जाते हैं। और अल्लाह क्या कहता है कि मैं कैसे नहीं दूँगा? तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको वो चीज़ दे देता हूँ, या फिर मैं आखिरत में उसको ज़ख़ीरा बना देता हूँ, या फिर उस दुआ के बराबर जो है उसकी मुसीबत को जो है टाल देता हूँ। सुभान अल्लाह! अब मान लीजिए आपने गाड़ी माँगी, गाड़ी नहीं मिली, ठीक है? गाड़ी लेकर एक्सीडेंट हो जाता तो उससे बचा लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी कि उसी के बराबर कोई बला को टाल दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो सहाबा ने कहा कि तब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बता रहे थे कि 3 तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दुआ कबूल करते हैं, तो सहाबा ने कहा कि तब तो हम कसरत से दुआएँ करेंगे। तो अब आपने कहा कि अल्लाह के पास बहुत खैर है, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, लिहाजा दुआ करते रहो। सुभान अल्लाह! साहबा ने कहा कि अब हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम माँगते रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत खैर है उसके पास, उसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लिहाज़ा दुआ करते रहो। फिर इसी तरह मुस्नद अहमद की एक और रिवायत है, रोज़े महशर में एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होगा, उसके नाम-ए-आमाल में ऐसी चीज़ें होंगी जो उसने कभी माँगी नहीं, तो वो पूछेगा कि या अल्लाह, ये कैसे हैं? कैसे कैसे मिली? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि ये वो तेरी तेरी वो दुआएँ हैं जो मैंने दुनिया में कबूल नहीं की थी, तो उन पर तूने सब्र किया। तो वो कहेगा कि अगर मुझे पता होता कि मेरा अज्र का मुकाम इतना है, या इतना मुझको इंक्रीमेंट मिलेगा मेरी दुआओं के ना कबूल होने के, तो मैं यही कहता कि अल्लाह मेरी एक भी दुआ जो है दुनिया में कबूल ना हो। सुभान अल्लाह! सोचिए कि इतना ज़्यादा जो है उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब देते हैं। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, कभी-कभी दुआ की शक्ल में अपने लिए क्या करते हैं, कह रहे हैं सूरह बकरा में कि लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी बद्दुआएँ माँग लेते हैं, और अल्लाह उसको नाकबूल करके क्या करता है, रहम करता है।
तो बेसिकली दुआएँ कौन कबूल करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं। दुआ जो है मुस्तकिल की जाने वाली इबादत है और मोमिन का हथियार है। और अगर अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है तो उसके बदले जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ ना कुछ देते हैं। और सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर जो है लोग कभी-कभी अपने लिए बद्दुआएँ माँगते हैं और मैं कबूल नहीं करके उनके ऊपर रहम करता हूँ, कि अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे नहीं, ठीक है? अल्लाह ने और अगर कभी-कभी आप माँग लेते हैं और अल्लाह ने वही चीज़ दे दी और उससे जब आपको खसारा होता है, तो आप क्या कहते हैं कि ये शर था मेरे लिए, मतलब इसमें मेरे लिए शर था और ऐसा हुआ। अब पहला स्टेप जो था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हू बहू जो है दुआ कबूल करते हैं, तो पहले वाले स्टेप को किस तरीके से 2 तरीके से करते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप हूबहू कर देते हैं या ज़ख़ीरा बना देते हैं आखिरत के लिए या फिर मुसीबत को टाल देते हैं। तो पहले स्टेप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 तरीके से कबूल करते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि या तो इंस्टेंट था ये, इंस्टेंटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कबूल कर लेते हैं। जैसे आज मैंने दुआ की, कल मेरी कबूल हो गई, 1 हफ्ते बाद मेरी कबूल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और इसकी रिवायत कौन-सी रिवायत है? जो कि 3 लोग जो हैं गार में जाते हैं, वो भी दुआ की कबूलियत में इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। 3 लोग गार में जाते हैं, उनका जो गुफ़ा होती है उसका वो ढक जाता है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या करते हैं, एक-एक अपनी नेकी का वो देते हैं, वसीला देते हैं कि या अल्लाह मैंने ये नेकी की थी, मुझे उस वसीले से क्या कर दे कि अल्लाह मैंने ये नेक काम किया था। वो कहते हैं कि अल्लाह वो सिर्फ़ मैंने तेरी खातिर किया था। और तभी-तभी जैसे पहला इंसान बोलता है तो पत्थर थोड़ा हटता है, दूसरा इंसान बोलता है तो पत्थर थोड़ा हटता है, इंस्टेंटली कबूल होती है वो दुआ उनकी, ठीक है? तो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हूबहू जो तरीका है वो इंस्टेंटली होता है। और दूसरे में क्या होता है, बहुत बाद में होता है, जिसमें सही बुखारी की कौन-सी है कि सही बुखारी की जो है कौन-सी हदीस है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वादी में छोड़कर गए थे, को उनकी बीवी हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने थोड़े दूर पर जाकर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या की थी, दुआ की थी कि या अल्लाह यहाँ पर इन लोगों की तो हिफाज़त फरमाना और किसी कबीले को जो है क्या कर देना, यहाँ पर भेज देना ताकि वो लोग आकर वहाँ बस जाएँ। ठीक है? इसका भी पूरा वाक़या जो है वो ज़ुल्हिज्जा की हकीकत में है। इस वाली हदीस का वाक़या पूरा है। तो और और क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या माँगा कि या अल्लाह इनमें से जो है तू नबी पैदा कर और उन्हें नबी इल्म दे, अता फ़रमा। मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी वहाँ पर। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे छोटे से को और कहा कि उन्हें जो है तू नबी इल्म अता फ़रमा और उनकी नफ्सों को गुनाहों से बचा और इनमें से एक नबी तो और पता है उनकी दुआ का नतीजा कौन थे? कोई मुझे बताइए चैट में कि उनकी दुआ का नतीजा कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम से कौन से नबी जो थे वो हुए थे? किसी को मालूम है? इब्राहिम हाँ, जी माशाल्लाह डॉक्टर नाज़िया सिस्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोचो बहनों दुआ अल्लाह सुब्हाना तआला ने अगर हू बहू जो है कबूल करनी होती है तो हजारों साल बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पूरी की सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला को अगर पहले तरीके से कबूल करनी होती है तो या तो वो इंस्टेंटली करते हैं जैसे उन उन इंसानों को गार से निकाला अल्लाह सुब्हाना व तआला ने या फिर जो है क्या किया अल्लाह सुब्हाना तआला ने हजारों साल के बाद दुआ कबूल की। तो अल्लाह रद्द नहीं करता है कभी भी जो है वो इतना एहसान करता है अपने बंदों पर कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देता ही है। वो नहीं खाली जाने देता है कि कुछ ना कुछ लेकर जाओ बस मुझसे। और फिर क्या है कि आप सबसे ज़्यादा बेहतर तोहफ़ा जो है किसी को दे सकते हैं, वो दुआ दे सकते हैं। ठीक? क्या दे सकते हैं? दुआ दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा क्या होता है? दुआ है। गलतफ़हमी क्या है कि दुआ सिर्फ़ बड़े लोग देते हैं। किसी को अगर मैंने दुआ दी तो कहते हैं आप तो बहुत बड़ी आपा हो गई हैं, आप अम्मा हो गई हैं, दादी हो गई हैं, है ना? ऐसा-ऐसा बोलते हैं ना? तो दुआ दीजिए कसरत से और
यकीनन बहनों, ये मैं अपना मतलब बता रही हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप लोगों को दुआ देंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौज़े होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलेगी कि आपने कभी किसी और के लिए कुछ माँगा होगा और वो आपके लिए पहले आकर आ जाएगा। लेकिन दुआ इस नियत से नहीं करनी है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मान लीजिए मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरी ज़रूरत के लिए और वो मैंने सामने वाली बहन के लिए माँग ली। नहीं, किसी बहन को किसी तरीके की कोई तकलीफ थी तो मैं गैब से उसकी दुआ करूँ, गैब यानी कि उसके पीठ पीछे अगर दुआ करती हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। और ये तो मैंने बताया कि फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। जब फरिश्ते वाला टॉपिक हुआ था, सुभान अल्लाह, तो फरिश्ते भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ भी कबूल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक? और जो है क्या होता है, ये हमारी गलतफ़हमी है कि जो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ़ उन्हीं की दुआ कबूल होती है, नहीं, वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं हर किसी की जो है दुआ कबूल करते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और ये भी होता है हमको बहुत ज़्यादा कि अल्लाह सिर्फ़ नेकों की दुआ कबूल करते हैं, गुनाहगारों की नहीं करते हैं। ये भी इंशाअल्लाह अभी जो है हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी की दुआ कबूल करते हैं। और फिर किसी से बोल दो कि दुआ कर लो या वो कर लो, सलाम कर लो, तो लोग कहते हैं नहीं हमको शर्म आती है, लेकिन हमें बाकी कामों में तो शर्म नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नहीं है, हर किसी की दुआ कबूल करते हैं। तो सोचिए यहाँ पर है ये सूरह 27 सूरह नमल आयत नंबर 62। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, बेकस कौन हुआ? बेकस कौन? जो कि हम हैं, जो कि बेकरार हैं, जो कि परेशान है। हम कितने परेशान होते हैं ना कभी अम्मा ना कभी अब्बा, कोई नहीं समझ रहा होता, मतलब रूम में बैठे बैठे ऐसा हो रहा होता है कि अल्लाह कौन है, किसको मैं बोल दूं। और आप बोलकर भी देख चुके हैं लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, बाद में ताने देते हैं। हम ही वो लोग हैं जो दूसरों को भी ताने देते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि बेकस की पुकार को जब वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि क्या किसी और से माँग सकते हो तुम? क्या कोई और दे सकता है कि मैं बेकस की सुनता हूँ, क्या कोई बेकस की सुनेगा? हम क्या करते हैं आजकल की दुनिया में, देखो कि जो कोई बड़े-बड़े लोग होंगे, बड़ी-बड़ी पोस्ट पर होंगे, उनकी उनके लिए सिफ़ारिशें आ जाती हैं कि हाँ, इनका एडमिशन करा दीजिए, इनके साथ ये करा दीजिए, इनको हॉस्टल में ये वाला रूम अलॉट करवा दीजिए, अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद का। ऐसा बोलते हैं, है ना? लेकिन कोई अगर वहीं छोटा इंसान आया जिसकी ना कोई सोर्स थी ना कुछ था, तो क्या उसके लिए कोई होता है? कोई नहीं होता। अल्लाह उसी को बेकस कहा गया है, उसी को परेशान इंसान, क्योंकि बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, जब वो इंसान पुकारता है तो कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता है। और तुम्हें जमीन का खलीफा बना, क्या अल्लाह ताला के साथ और कोई माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो, यानी कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं ही करता हूँ सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अज़ाब लाना चाहा बस्ती पर, तो उन्होंने सोचा कि अब दावत लेकर क्या फ़ायदा, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। फिर वो कश्ती में सवार हुए, फिर वहाँ तूफ़ान आया, कश्ती में एक खुर्रा उन्होंने कहा कि डालेंगे, लाइक आई थिंक इट वाज़ अ काइंड ऑफ चिट, जैसे कि जिसका पेपर पे नाम आ गया या फिर जिसकी तरफ वो खुर्रा डाला गया, उसको नदी से उसको जो है उस कश्ती से उतरना पड़ेगा। तो खुर्रा डाला, किसका नाम आया? यूनुस अलैहिस्सलाम का, तो उनको जो है कश्ती से जैसे ही फेंका, मछली ने आके निगल लिया। तो आप बताइए, क्या कोई सुनने वाला था वहाँ मछली के पेट में? यानी कि जब आप अकेले हैं, जब आपको कोई नहीं सुन सकता, तो वो चीज़ आप खुद पे अप्लाई कीजिए। क्या कोई मेरी बहन ऐसी है कि जो अभी जिसको कोई नहीं समझ पा रहा हो, जिसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हो कि वो कोई नहीं समझ सकता, जो सबसे दूर फील कर रही हो, तो क्या उसकी हालत यूनुस अलैहिस्सलाम की जैसी नहीं? हाँ, तो क्या मतलब वो जो है सबसे दूर नहीं, तो क्या मतलब, अब देखिए, जब कोई नहीं था तो क्या किया, सबसे पावरफुल हथियार ही यूज़ किया यूनुस अलैहिस्सलाम ने, और क्या किया, दुआ की और कहा कि बस अंधेरों के अंदर से
पुकारा उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं पुकार उठे कि ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ देखिए अल्लाह की इबादत है ना हर उसमें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। जब कोई नहीं है सुनने वाला, जब कोई नहीं सुनता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करे? दुआ करे बहनों। जब आपको लगे कि कोई नहीं है कुछ करने वाला और वैसे भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो एक मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि आप किसी को जो है ईज़ी फ़ील कराएँ, आप किसी की जो है मुश्किल आसान कर दें, वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हम ज़रिया हैं, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही करते हैं सारी चीज़ें। और फिर आयत नंबर जो है सूरह अंबिया की 88 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जवाब दे रहे हैं उसका, बस हमने उसकी दुआ कबूल की। सोचिए, बस हमने अपनी दुआ उसकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें गम से निजात बख्शी। सोचो, गम से निजात बख्शी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा? हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि मछली के पेट से ही निजात देते हैं। अल्लाह ने कहा यहाँ निजात दिया करते हैं। इसी तरह आपकी कंडीशन कोई दूसरी हो सकती है बहनों, किसी और की कंडीशन कोई दूसरी हो सकती है, मेरी कंडीशन दूसरी हो सकती है। वी ऑल आर टायर्ड, वी ऑल आर एग्जॉस्टेड इमोशनली, मेंटली, कभी कभी फिजिकली ऐसा होता है कि सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि हम निजात देते हैं। किस चीज से निजात देते हैं? जैसे कि अंधेरों में समुंदर के अंधेरों में कौन चले गए थे? यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा, तो अल्लाह ने कहा मोमिनों को। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने निजात दी, अल्लाह ने कहा तुम अगर मोमिन हो तो मैं तुमको भी निजात दूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन इस दुआ में क्या था? कन्फेशन भी था। हमें क्या है, अगर हम कोई गुनाह कर देते हैं तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये ज़रूर कन्फेस करें कि अल्लाह मुझे पता है मैंने ये गुनाह किया है और मैं शर्मिंदा फ़ील। कभी-कभी क्या होता है ना, हम गुनाह करके उसको जस्टिफ़ाई करते हैं कि मैंने ये इसलिए किया। नहीं, अगर आपने कोई गलत काम किया तो आप उसको कन्फेस ज़रूर करें, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम ने वही कहा कि या अल्लाह बेशक मैं ज़ालिमों में से था। तो ही इज़ कन्फेसिंग कि अल्लाह मैंने गलत किया है ये काम। तो कन्फेस करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने गुनाह को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये हो गया कि अब हमें पता चल गया कि दुआ तो इतनी अच्छी चीज़ है, तो हम क्या करें? ज़ाहिरी असबाब छोड़ दें। अब ये हो गया कि दुआ और ज़ाहिरी असबाब क्या हो गए कि मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना? जो कि की जा सकती हैं, ठीक? अब क्या हुआ कि ये जामी तिर्मिज़ी की जो है रिवायत है, जामी तिर्मिज़ी की रिवायत में क्या जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोल रहे हैं, सॉरी, अ, ये किस्सा है कि दुआ की अहमियत चल गई, और मतलब तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि हम कहेंगे अल्लाह पास करा दें, टॉप करा दें, और पढ़ नहीं रहे हैं। है ना? ये भी तो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करते हैं आप अकेले, लेकिन आप पढ़े तो सही। फिर क्या कर रहे हैं हम कि अल्लाह पास करा दें, टॉप करा दें, और ज़ाहिरी असबाब को छोड़ दिया हमने। ज़ाहिरी असबाब भी ज़रूरी है, पढ़ना भी है हमको, कबूल करने वाला अल्लाह है। जामी तिर्मिज़ी की जो ये रिवायत है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक शख्स आया और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़कर मस्जिद में आ जाऊँ और अल्लाह पर तवक्कल करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, पहले अपनी ऊँटनी को बाँध, फिर अल्लाह पर तवक्कुल कर और आके मस्जिद में बैठ। तो ये ज़ाहिरी असबाब है। आप ऐसे कैसे कोई आप ये नहीं कर सकते कि सामने जो है आपकी कोई चीज़ ऐसी है, शेर खड़ा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है और आप भागेंगे नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैर किस लिए दिए आपको? कि अल्लाह बचाएगा हमको? नहीं। दुआ आप करेंगे, काम करना, कोशिश करना मेरे हाथ में, नतीजे तक पहुँचाना मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। जब मुझे ये पता चल गया कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, कैसे करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता देंगे मुझको। फिर इसी तरीके से जंगे बदर का वाक़या है। एक रात पहले जंगे बदर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़, जो बदर का पहाड़ था, वहाँ पहुँचे। उनके साथ जो 313 या 319 की तादाद में जो है वहाँ मुसलमान मौजूद थे, सहाबा मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जंगे बदर की पूरी तैयारी कर ली। पूरी तैयारी यानी कि जितने भी हथियार थे, जितने भी भाले थे, जितने भी तीर थे, जितना भी उनके पास था, पूरी तैयारी कर लिया। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना आखिरी हथियार यूज़ किया। वो क्या थी? दुआ। किबले की तरफ मुँह किया, तो इसका मतलब किबले की तरफ मुँह करके दुआ करके क्या माँग सुन्नत है किबले की तरफ जो है
मुँह करके दुआ माँगना सुन्नत है। फिर हाथ इतने ऊपर किए कि आपकी बगल मुबारक की सफ़ेदी नज़र आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे कहे जाते हैं। वल्लाहु आलम। लेकिन ये मैंने कहीं से सुना इसलिए मैंने ये चीज़ यूज़ की, तो उनके बगल की सफ़ेदी नज़र आने लगी। तो इतने ऊँचे हाथ जो हैं, मतलब जितनी शिद्दत दुआ में हो आप उतना हाथ जो है ऊँचा कर सकते हैं। ये जंगे बदर के वाक़ये से साबित होता है। और जो कपड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े थे पहले सिलने का तो कुछ था नहीं, तो चादर में एक छेद बनाकर गड़े गले में डाल लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, पीठ मुबारक दिखता जहाँ से, और सर्दियों की रात थी बहनों। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रहे थे कि जब उनका पीठ दिखता तो मैं पीठ से चिपक जाता, ठीक है? और जब उनका पेट दिखता तो मैं उनकी पेट से चिपक जाता ताकि उनको गर्मी मिलती रहे, ठीक है? कभी इधर रहता तो कभी उधर रहता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह अगर इस लश्कर को अगर कुछ हो गया तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। रात भर दुआ में हाथ ऊपर खड़े करके करके रहे, ठीक है? लेकिन दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले क्या था, औज़ार तैयार किए, पहले तलवारें अपनी रख ली थी, फिर दुआ की थी। ठीक है? तो दुआ के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, वो करना भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि जॉब मिल रही है, मुझको ट्रेन पकड़नी है और 1 करोड़ की सैलरी है, जॉब मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं अल्लाह से नाराज़ हो जाऊँगी। मुझसे ज़्यादा नाराज़ इंसान कोई नहीं होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उस टाइम। ठीक है? लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चलेगा उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार इंसान कोई नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी करते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। वो आपको अभी ना पता चले, कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है हम क्या देखते हैं कि दुआ किस जो जो कि आज का टॉपिक ही था कि पहले हमने इम्पोर्टेंस बताई कि दुआ क्या थी और दुआ किस तरीके से की जानी चाहिए, दुआ का करने का क्या तरीका है। ठीक है? तो ये किस तरीके से की जानी चाहिए और किस तरह से दुआएँ कबूल होती हैं, वो तो एक अलग से टॉपिक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जामी तिर्मिज़ी की रिवायत है कि एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी 2 रकात और दुआ की, ठीक है? "ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान को देख रहे थे और कहा कि इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो सहाबा ने कहा क्यों? तो आपने फरमाया जब दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, यानी कि अल्लाह की तारीफ़ करो। सूरे फ़ातिहा, सूरे इख़लास पढ़ो। अल सिर्फ़ उन्होंने कहा जैसे कि सूरे फ़ातिहा उसमें अल्लाह की तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। तो पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करो, हम्द व सना बयान करो। फिर उसके बाद क्या करो, फिर मुझ पर दुरूद भेजो। क्या करो? मुझ पर दुरूद भेजो और फिर अपनी हाजात रखो। तो सहाबा ने ये बात सुनी और गए, वुज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, हम्द व सना की, दुरूद भी भेजा और फिर अपना जो है अपनी हाजात रखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल हुई। सुभान अल्लाह! तो पहली चीज़ क्या थी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना करनी है, दुआ माँगते टाइम सबसे पहले, फिर उसके बाद दुरूद, फिर अपनी हाजात रखनी है। तीसरी क्या कंडीशन है कि दुआ जो है जामे हो, जामे यानी कि डायरेक्ट हो। इसकी सही बुखारी से हमको रिवायत मिलती है कि एक इंसान था, वो बड़े-बड़े जुमलों मतलब अगर आप अल्लाह से जन्नत माँग रहे हैं तो सिर्फ़ जन्नत माँगे। एक इंसान इसी तरीके से बड़े-बड़े जुमलों में दुआ कर रहा था और माँग रहा था कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के दाहिनी तरफ इतने बागात, जन्नत के बाहिनी तरफ इतने बागात, जन्नत के ऊपर इतनी जगह। तो उसके वालिद ने उसे ने टोका और बोला कि ये कैसे दुआ माँग रहे हो आप? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसी दुआ करने के लिए, और सिर्फ़ आप माँगो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत दे और वो जन्नत में जितनी चीज़ें हैं दे। इसी तरीके से जहन्नम से पनाह माँगे, जहन्नम की आग से बचा, जहन्नम के इससे बचा, नहीं, सिर्फ़ जहन्नम से पनाह माँगो। तो बड़े-बड़े जुमलों में दुआ नहीं, डायरेक्ट एक टूक और ज़्यादा लंबे-लंबे अल्फाज़ ना हो कि अल्लाह हम कब्र के अज़ाब से जो है वो पनाह चाहते हैं, हम जन्नत की तलब रखते हैं बस। जन्नत में इतनी चीज़ें, ये इस तरीके से दुआ नहीं माँगनी है। क्या है? दुआ जामे हो हमेशा, यानी कि डायरेक्ट और एक टुक दुआ हो। ठीक? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खुद बेहतर समझने वाले हैं। तो ये आप खुद को समझाने के लिए नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो समझे समझाए हैं कि आप क्या माँगते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस तरीके से क्या करना है, तीसरी में अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये हमें नहीं बोलना है। हमें क्या नहीं बोलना, अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, नहीं, अल्लाह सुब्हानहू अगर मैं किसी इंसान से ये चीज़ बोलूँगी कि जैसा आपको बेहतर लगे, आप वो कर दीजिए, तो वो इंसान सोचेगा कि मुझे क्या बेहतर है, इसके लिए क्या बेहतर है? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं समझूँ। आप ये दुआ कभी ना माँगे। मुझे लगता है शायद मैंने भी ये कभी किया होगा। आप कहें कि या अल्लाह ये मेरे लिए बेहतर है तो तू दे, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ये नहीं कि तू बेहतर समझे तो। देखिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं और इस्लाम में बहुत बारीकियाँ हैं बहनों, कि तू बेहतर समझे तो दे। यानी कि तू जाने, तू समझ-बूझ के मुझको दे। ऐसे थोड़ी ना दुआ करते हैं। तो पहला क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना, फिर दुरूद, फिर अपनी हाजात, और हमें एकटुक यानी कि जामे हो, और जो है क्या करना है, क्या बोलना है कि या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर हो, और तू बेहतर जानने वाला है। फिर दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का यकीन रखना है। क्या करना है? दुआ की कबूलियत का यकीन रखना है। आपके मन में शक आया कि नहीं हुई तो दुआ कबूल, तो फिर नहीं होती। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं नहीं नहीं दूँगा। फिर शक कर लिया ना मुझ पे, तो मैं नहीं दूँगा। और अल्लाह आपको पता होना चाहिए कि आप गनी से माँग रहे हैं, और गनी कौन होता है? जो देता है, यानी कि माला-माल जो होता है उसको गनी बोलते हैं, कि मैं वो तो माल से गनी है, वो तो इस चीज़ से गनी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसमें खज़ाने में जो अभी पिछले पढ़ा था, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं। अ, सहाबा ने क्या कहा कि अब तो हम दुआ और ज़्यादा दुआ करेंगे, तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हें जितना माना है माँगो, अल्लाह के यहाँ खैर की कमी नहीं, सुभान अल्लाह। तो हमें क्या करना है, हमें शक नहीं करना। जब उसके पास किसी की कमी नहीं, तो हम शक क्यों करें? हम ये माँगे कि अल्लाह ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है तो दे। फिर उसके बाद दुआ में तवज्जो, खुशू होनी चाहिए, यानी कि सिंसियरिटी होनी चाहिए। जैसे नमाज़ में और रोज़े में सिंसियरिटी होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कबूलियत के मुकम्मिल होने के यकीन के साथ दुआ करो। याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कबूल नहीं करता। दुआ माँग रहे हैं और नज़र इधर है, हाथ उधर है, इधर देख रहे हैं, उधर क्या हो रहा है, अच्छा ये परिंदा जा रहा है, और सिर्फ़ आमीन, आमीन बोल रहे हैं, इस तरह से दुआएँ कबूल नहीं होती, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये चीज़ नहीं पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे सिर्फ़ एक चीज़ ही चाहते हैं, जो कि है सिंसियरिटी, जो कि है क्या? जो है आपकी जो है खालिस नियत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने की, और सिर्फ़ उससे माँगने की ही होनी चाहिए। फिर जो है दुआ माँगने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, जैसे कि किसने किया? यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया। एतराफ़ किया ना कि ला इलाहा इल्ला सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं ज़ालिमों में से था, या अल्लाह मैं कबूल करता हूँ, मैं ज़ालिमों में से था। तो अगर आपने कोई गुनाह किया, आपको अपने गुनाह याद आते हैं, तो आप बोलें कि या अल्लाह मैंने गुनाह किया, उसमें कोई उसकी बात नहीं। आप अपना घमंड लेकर कहाँ जाएँगे? आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ये नहीं बोल सकते कि वो तो मैंने इसलिए किया था। आप किसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? गलत मतलब गलत। तो क्या करिए, गुनाहों का एतराफ़ करें, और 3 बार आप जो है, ये हाकिम की रिवायत थी, और इसी तरीके से वो इब्न माजा की ये रिवायत है कि 3 बार आप दोहरा सकते हैं दुआ, अगर ख़ास हो तो। अगर ख़ास हो तो, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की तलब और जहन्नुम से पनाह की जो है 3 बार जो है क्या माँगे, दोहराया। जैसे हम रब्बी ज़िदनी इल्मा 3 बार पढ़ते हैं ना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो आप दोहरा सकते हैं 3 बार, अगर अहम हो दुआएँ तो। इसी तरीके से हम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ठीक है? तो ये इब्न माजा की रिवायत है कि आप जो है दुआ अगर ख़ास हो तो उसको 3 बार दोहरा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्या है कि हाथ उठाएँ, ठीक है? बगैर वो मन हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज़ है, लेकिन जैसे कि हमने अभी जंगे बदर के वाक़या से सुना कि हाथ उठाना सुन्नत है, तो हम सुन्नत तरीके से भी दुआ माँगेंगे। और जैसे कि मान लीजिए, अब इंसान हर टाइम हाथ नहीं उठा सकता ना, या तो नमाज़ के टाइम में उठा सकता है, या मान लीजिए कोई बीमार है, उसकी शिफ़ा के लिए आपको दुआ करनी है, तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो दुआ हाथ उठाकर दुआ माँगना सुन्नत है, लेकिन अगर आप बिना हाथ उठाए, मतलब रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आप बिना हाथ उठाए जो है माँगे, तो वो भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और छोटी से छोटी चीज़ जो है आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगिए। जामिया तिर्मिज़ी की
रिवायत है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से माँगे, अल्लाह से माँगे, हत्ता कि जूते का तस्मा यानी कि लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से माँगे कि अल्लाह जो है यही लेस चाहिए, ठीक है? खाने में अगर नमक की कमी है, तो भी अल्लाह से माँगे, ठीक है? उसके बाद कोशिश होनी चाहिए, यानी कि मैं ये नहीं कि मेरे पास लेस अपने आप हो जानी चाहिए, यहाँ तक कि खाने के में अगर नमक की कमी है, तो भी अल्लाह से माँगे। अब ये नहीं कि अपने आप ही उसके अंदर नमक आएगा, उसके साथ क्या है ज़ाहिरी असबाब, कोशिश भी ज़रूरी है। आप उठिए, लेस लेने के लिए बाहर जाइए, खरीदिए, नमक लेने के लिए जाइए। ठीक है? तो वो परफेक्शन सुभान अल्लाह सबाहा है ना वो ही इज़ द परफेक्ट वन। तो आपकी चीज़ें जो हैं परफेक्ट हो जाएँगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गुनाह वाली दुआ ना माँगे, जो मैंने कहा कि गुनाह वाली दुआ कभी भी ना माँगे कि अल्लाह मुझे ये करने की वो कर दे। ये जो जो भी चीज़ें हैं गुनाह वाली है, कि मैं घर से बाहर निकल जाऊँ या मैं ऐसे काम करूँ या मैं वैसे काम करूँ, नहीं, गुनाह वाली दुआ नहीं माँगनी है। और किबले की तरफ मुँह करके माँगना सुन्नत है, जो कि हमें करबला के वाक़ये से पता चलता है कि मुँह किबले की तरफ करके दुआ माँगना जो है सुन्नत है। तो ये क्या था? ये दुआ माँगने के कुछ तरीके थे जो कि सुन्नत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उससे क्या है जो कि फ़र्ज़ तो क्या ही हो गया, जैसे कि आपको हम्द व सना करनी है, दुरूद पढ़ना है, फिर हाजात करनी है और एक टुक दुआ करनी है। फिर ये बोलना है कि जो मेरे लिए बेहतर हो। फिर बोलना है फिर जो है क्या है कि दुआ की कबूलियत का यकीन करना है बहनों। तो ये सब क्या थे? ये कंडीशंस हैं। ये दुआ की कंडीशंस हैं और तरीके हैं कि किस तरीके से आपको जो है दुआ माँगनी है। और फिर आता है वसीले से दुआ माँगना। इसका बहुत ज़्यादा जो है सवाल उठाया जाता है कि किसी के वसीले से जो है दुआ माँग सकते हैं या नहीं माँग सकते हैं। तो पहला जो है पहला मैं ये बता दूँ कि दुआओं को हमेशा वसीले से करने की ज़रूरत नहीं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि मैं जो है आपके फ़इन्नी करीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं कहा कि नबी तुम कह दो कि मैं उनके करीब हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि मैं करीब हूँ। अगर तुमसे पूछते हैं तो मैं करीब हूँ। ये कहा, तो फिर कौन अब हम किसके वसीले से दुआ माँगे? तो हमेशा ज़रूरत नहीं करने की, अल्लाह सीधी भी सुनता है, ठीक है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीला जो है लोगों ने लिया और सहाबा भी लिया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना जब वो दुनिया में थे, हयात में थे, जायज़ था। जब वो दुनिया में थे, हयात में थे तो जायज़ था, ठीक है? नबी क फिर ये वाक़या है जो कि सही मुस्लिम है, जायज़ है वसीले से दुआ करना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना कब जायज़ था? जब वो हयात में थे, जब वो अपनी ज़िंदगी में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख़्स आया और बोला कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मैं बीना हो जाऊँ, मुझे बीना कर दें यानी कि मेरे आँखों की रोशनी लौटा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए बेहतर है, तो बोला कि नहीं आप दुआ करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने उन्हें एक दुआ सिखाई और कहा कि 2 रकात जाकर नमाज़ पढ़े और दुआ करो तुम और मैं भी दुआ करूँगा। और तो उसने कहा कि ठीक है, फिर वो गया, उसने दुआ माँगी और वापस लौटा और कहा कि मुझे बीनाई आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक? फिर उसके बाद क्या है, अब ये वसीला है कि लोग माँगा करते थे उनके वसीले से, तो बेशक वसीला उनकी हयात, उनकी ज़िंदगी में लोगों ने माँगा है। अब ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और वफ़ात पा गए। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर था। बारिश नहीं हुई उनके ज़माने में और बारिश जो थी कम हुई, तो आपने ऐलान किया कि नमाज़े इस्तिख़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ेंगे। इस नमाज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इंशाअल्लाह मैं आपको पता करके बताऊँगी क्योंकि ये 2 बार यूज़ हुआ है आज। और आपने किसको बुलाया? अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। और क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी हो गए, क्योंकि उनके चचा थे, तो क्या कहा? अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ की कि ए अल्लाह, तेरा नबी हमारे बीच ज़िंदा नहीं था। ये अल्फ़ाज़ हैं, ये सही बुखारी के अल्फ़ाज़ हैं बहनों। क्या कहा? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए अल्लाह, तेरा नबी हमारे बीच ज़िंदा था, तो हम उसके वसीले से दुआएँ माँगते थे और तू खूब बारिश बरसाता था। तेरा नबी हमारे बीच बाकी नहीं है, बाकी नहीं रहे। मैं अब अब्बास, उनके चचा, उनके वसीले से दुआ माँगता
माँगता हूँ। यानी कि ज़िंदा इंसान का ही वसीला दिया जा सकता है बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदा इंसान इंसान का वसीला दिया जा सकता है। तो क्या है, तो तो तू बारिश बरसा और बारिश हुई बहनों। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की और किसके वसीले से? अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वसीले से की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर उनकी हयात में, उनकी ज़िंदगी में वसीला लेना जायज़ था, वसीला लेना जायज़ है, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में उनका वसीला लेना जायज़ है और उनके वफ़ात के बाद जो है, आप किसी ज़िंदा इंसान का वसीला लें, जो कि नेक हो और जो बुज़ुर्ग हो, यानी कि जो बड़ा हो। अब हमें क्या होता है कि नेक और बुजुर्ग का जहाँ भी नाम आ जाता है तो हमको बाबा याद आते हैं दरगाहों पे बैठे हुए के लंबे लंबे बाल, ये जो वली होता है ना बहनों, वली जो है क्या होता है, वो वाहिद होता है, मुशरिक नहीं होता, नमाज पढ़ता है। ठीक है, इसमें अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, उनके पेट में छेद था बहनों, पेट में छेद था और वो ब्लीड कर रहे थे बुरी तरह से। असर की नमाज की उन्होंने अजान सुनी और उठने लगे, कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी नमाज़ नहीं छोड़ी। तो वो लोग ना नमाज़ पढ़ते, तो बुज़ुर्ग और नेक इंसान से, और ज़रूरी नहीं आप हर बार वसीले से ही दुआ माँगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ऐसे भी कबूल करता है। अभी एक वाक़या अगर टाइम होगा तो इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगी। और अल्लाह सुब्हान और किस चीज़ का वसीला दे सकते हैं आप? नेक अमाल का वसीला दे सकते हैं, जो कि आपको दुआ की कबूलियत में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही वो जो 3 दोस्त थे, वो गार में गए और फिर गार का जो था मुँह पत्थर से ढक गया, तो एक ने कहा कि मैं अपने माँ-बाप को पिलाता था, वो मेरा नेक अमल था या अल्लाह, तो उसके बिना पर जो है मेरी मदद फरमा, और जो है तभी जो है पत्थर हट गया। दूसरे ने क्या कहा कि मैंने गुनाह से जो है उस दिन सिर्फ़ आपके लिए बचा था, तो या अल्लाह, तो उसके उस नेक अमाल पर जो है मेरे लिए क्या कर, मेरी मदद फरमा, और पत्थर हट गया। फिर तीसरे ने क्या किया, किसी मज़दूर के पैसे थे वो लौटाने थे, तो वो उसने लौटाए, तो उसने अपने नेक अमाल का वसीला दिया। तो वसीला देना जायज़ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में जायज़ था, उनके मरने के बाद नहीं। जो किस चीज़ से साबित हुआ? ये साबित हुआ सही बुखारी की इस वाली हदीस से। ठीक है? इसी तरह से सीरत माविया का भी है। उन्होंने भी जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे, वो शाम में थे, उनके टाइम पर भी जो थी बारिश नहीं हुई थी, उन्होंने भी किसी का वसीला लिया। लेकिन किसी नेक का और किसी बुजुर्ग का वसीला लिया। और वसीले की भी जो है बहनों कंडीशंस हैं, ठीक है? वसीले की भी जो है कंडीशंस होती है, और इंसान अपने नेक अमाल का वसीला दे सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वसीले की मैं कंडीशंस बता देती हूँ कि वसीले की कंडीशंस क्या होती हैं, कि जिसका वसीला लिया जा रहा हो, उसको मसला मालूम हो। जैसे कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम था कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बुलाकर भेजा। जिस तरीके की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, ठीक है? और वो उस नाबीना का था, तो दोनों दुआ करें उस एक पर्टिकुलर उसके लिए, ठीक है? दोनों को मामला जो है मालूम होना चाहिए, और जिसका वसीला दिया जाना चाहिए वो इंसान नेक और क्या होना चाहिए? बुज़ुर्ग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो आदमी ज़िंदा हो, मसला पता हो, और क्या जो है दोनों उस चीज़ के लिए दुआ करें, ये वसीले की कंडीशंस होती हैं। अब अगर आप जो है मरे हुए इंसान का वसीला माँगते हैं, तो वो जायज़ नहीं है बहनों, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक है? बाकी किसी कि जितनों का भी वसीला है, वो सब नाजायज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सब चीज़ों से बचाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बच गया है, तो मैं ये बता देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन-की जो है कबूल करते हैं, और जो है किन-की दुआएँ कबूल करते हैं और किन-की जो है रद्द करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जिनकी दुआएँ कबूल करते हैं, वो मज़लूम की दुआएँ कबूल करते हैं, मुसाफ़िर की दुआ कबूल होती है, बाप की दुआ अपने बच्चे के लिए कबूल होती है, और गाज़ी यानी कि जंग के लिए जाने वाला जो होता है सिपाही, उसकी दुआ कबूल होती है। हज और उम्रा के लिए जाने वाले जो हैं वो हज और उम्रा के लिए जाने वाले जो हैं, वो उनकी दुआ कबूल होती है, नेक औलाद की दुआ कबूल होती है, ठीक है? और उसी तरीके से किसकी दुआ कबूल होती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है एक जगह फरमाया, ये हदीस की रिवायत है कि खुशी में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, तो अल्लाह मुश्किल में उसकी दुआ कबूल करता है। तो हम जब मुश्किल आती है और हम तभी दुआ माँगते हैं, तो अब हमें पता चला कि क्यों कबूल नहीं होती, क्योंकि हम खुशी में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद ही
नहीं करते, है ना? और फिर बीमार की दुआ कबूल होती है, और जो भाई के लिए, गैबाना मुसलमान भाई के लिए, है ना, यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि मैं अपनी बहन के लिए दुआ कर रही हूँ उसके पीठ पीछे, तो उनकी दुआ कबूल होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किनकी दुआ कबूल नहीं करते हैं? जो रिज़्क़ हराम खाने वाला हो, जिसकी परवरिश ही हराम के रिज़्क़ से हुई है। इसीलिए हर एक मुसलमान का जो है क्या है, ये फ़र्ज़ है कि अपनी औलादों को भी हलाल से खिलाएँ, और जो गुनाह के लिए क्या है, ख़ता रहमी करे, मतलब जो गुनाह के लिए दुआ माँगे और ख़ता रहमी के लिए दुआ माँगे, यानी कि रिश्ता तोड़ने के लिए और गुनाह के लिए दुआ माँगे, उसकी दुआ नहीं कबूल होती। और जो है ग़फ़लत वाले की, जो ग़फ़लत में पड़ा हुआ हो, उसकी, जो भटका हुआ हो, उसकी नहीं होती, यानी कि जो गाफ़िल हो, और ज़ानी की दुआ कबूल नहीं होती, और फ़र्ज़ को छोड़ने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा इसके अंदर अभी और सारी चीज़ें हैं, 5 मिनट है तो मैं इंशाल्लाह बता देती हूँ आपको। इसमें क्या है कि कलमे हैं जिनको अगर अपनी दुआ के साथ जो है मतलब लगाया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ जो है रद्द नहीं करते हैं। जैसे कि क्या है इसमें, अल्लाह के इस्म आज़म से दुआ करना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वसीला किसका जायज़ है, ये भी मैं एक बार बता देती हूँ कि किस-किस के वसीले से आप दुआ माँग सकते हैं। अल्लाह के प्यारे-प्यारे नाम हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनकी रहमानी का वास्ता दें कि या अल्लाह तू रहमान है, तुझे तेरे रहमानी का वास्ता, या अल्लाह तू गफ़्फ़ार है, या अल्लाह तुझे तेरे माफ़ी देने की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुव्वत है उसका वास्ता, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे-प्यारे नाम से आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनका वास्ता दे सकते हैं। फिर ज़िंदा बुज़ुर्ग का मैंने बता ही दिया, तो अस्माउल हुस्ना जितना भी है उसका आप वसीला ले सकते हैं, आप उनका वास्ता दे सकते हैं। अब उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो अभी किसी बहन ने यहाँ पर जो है पूछा कि क्या वहाँ जाना सही है या नहीं है मज़ारों पर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है यहाँ पर सूरह माइदा की आयत नंबर 40 में फरमाते हैं कि तुम उनसे माँगते हो जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, क्या वो कर सकते हैं? ठीक? फिर इसी तरीके से सूरह फातिल की आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये खजूर की जो गुठली होती है ना, खजूर की गुठली का छिलका, ठीक है? उस चीज़ को नहीं बना सकते, ठीक? तो क्या आप उनसे माँगेंगे? इसी तरह से सूरह नहल, ये सब कुरान की आयतें हैं बहनों, ये मान लीजिए ये कहीं से नहीं आई, ये सब कुरान की आयतें हैं। इसी तरह सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 20 में और 21 में, कि उनको तो खुद पैदा किया गया है। उनको खुद पैदा किया गया है और वो मुर्दा हैं, और उनको तो ये भी खबर नहीं कि उनके वसीले से दुआ माँगी जा रही है। सुभान अल्लाह! सोचिए तो क्या उनसे माँगना, और वसीला मुर्दे आदमी का नहीं आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं आया है? मुर्दे आदमी का नहीं आया है। इसी तरह से दुआओं में ऐसे अल्फाज बोलना भी जो है वो मना है, जैसे कि पुरतकल्लुफ़ अल्फाज आप बोल रहे हैं, अशार यूज़ कर रहे हैं, शेर शायरी यूज़ कर रहे हैं कि बस शुरू हो गए कि अल्लाह ऐसा-ऐसा, ठीक है? और गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं बोलनी है, वही कि या अल्लाह जन्नत दे तो दाहिनी तरफ इतना, बाएँ तरफ इतना, ठीक है? और गुनाहों की सज़ा जो है अपनी दुआ में नहीं माँगनी चाहिए। एक शख्स ने माँगी, वो बीमार पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम पागल हो, तुम जाहिल हो कि इतनी ताकत तुम्हारी उसमें नहीं कि सज़ा झेल पाए यहाँ पर, ठीक? और जो है दुआ करें, और उसके बाद जो है क्या, अगर तुमको दुआ माँगनी ही तो तुम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम जो है वो माँगते कि अल्लाह ये जो है आखिरत भी आसान कर, ठीक है? दुनिया भी आसान कर, ठीक है? तो आप ये दुआ माँगते, कभी भी अपने गुनाहों की सज़ा जो है वो दुनिया में जो है नहीं माँगनी चाहिए। तो बहरहाल जो मज़ारों का हाल है, वहाँ पर हमने ये देख लिया, सही हदीस से देख लिया बहनों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बात तो बड़ा कोई नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में वसीला दिया गया उनके मरने के बाद। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं दिया, तो जो है बाकी जो कांसेप्ट है वो मज़ारों का वही ख़त्म हो जाता है इस हदीस से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब, बेशक वो हिदायत देने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको ऐसी दुआ माँगने की जो है ताकीद दे, ऐसी दुआ माँगने की। हाँ, 1 मिनट है, एक और कहानी मैं बता देती हूँ थोड़ा इसके अंदर। इसमें हल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि उनके टाइम पर क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। सूखा पड़ा तो वो भी नमाज़े इस्तिग़ासा पर इस्तिग़ासा
सब पढ़ने जा रहे थे, इस इसका आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है? तो वो भी पढ़ने जा रहे थे एंड आई विल टॉक अबाउट अगले उसमें सेशन में इस वाली नमाज के बारे में पता करके कि ये क्या होती है, ठीक? वो 2 रकात नमाज पढ़ने जा रहे थे और उस बस्ती से निकल रहे थे और अपने साथियों को लिया कि चलो हम नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करते हैं, बारिश की दुआ माँगते हैं। तो वहाँ पर एक चींटी लेटी हुई थी। चींटी लेटी हुई थी अपने पेट के बल और दोनों उसने हाथ पैर ऊपर किए हुए थे। तो सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा आप सल वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ज़रूरत नहीं, चलो बारिश हो जाएगी, ठीक है? तो सहाबा ने कहा कि आप हमें वहाँ से यहाँ लेकर आए हैं तो कैसे दुआ हो जाएगी? कैसे बारिश हो जाएगी और कैसे दुआ कबूल हो गई, कैसे बारिश हो जाएगी? इतने टाइम से सूखा पड़ा हुआ है, ठीक? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने एक चींटी को देखा, वो अल्लाह से दुआ कर रही थी और उसने बारिश की दुआ की और अल्लाह ने उसकी सुन ली। सुभान अल्लाह! तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक चींटी की सुनता है बहनों, तो हम लोग तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क्या है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेस्ट ऑफ क्रिएशन हैं। लेकिन हमें वैसा बनना है जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको बनाया, हमें वैसा बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी दुआएँ कबूल करता है और वो कहता है फ़इन्नी करीब कि मैं करीब हूँ। फिर इसी तरीके से लोग जो है कुछ ये भी बोलते हैं कि क्या कुछ लोग कहते हैं कि आप मतलब नहीं मानते और कहते हैं कि अगर आपको छत पर जाना है तो सीढ़ी लगानी तो ज़रूरी है। लाइक जो पीर हो गए, वली हो गए, उनके पास जाना ज़रूरी है। तो बेशक छत जो है, छत पर सीढ़ी लगाने की ज़रूरत है क्योंकि छत जो है वो 20 फुट ऊँची है, वहाँ पर सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी बहनों। लेकिन जो हमारी जुगुलर वेन है, जो हमारी ये जो धड़कती है ना यहाँ पर गर्दन पे जो काटी जाती है, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे ज़्यादा करीब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारी जुगुलर वेन, तुम्हारी शहरग से ज़्यादा करीब हूँ। तो शहरग के लिए मुझे लगता है किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, हम सारी बहनों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जितने भी लोग गफ़लत में पड़े हैं उन्हें उनसे निकाल कर इस्लाम का सही तरीका, सही कुरान और सही सुन्नत के तरीके पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की दिली जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स। वही यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले